میر امن دہلوی صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت شاندار کتاب باغ و بہار لکھ دی۔ فورٹ ولیم کالج کی طرف سے میر امن دہلوی صاحب کو 500 روپیہ کا انعام ملا۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یوٹیوب چینل فیئر آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ویلکم کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہترین اور نہایت اہم ٹاپک لے کر کے حاضر آئے ہیں۔ اس میں نہایت اہم ٹاپک یہ ہے کہ بہار بورڈ کی جو کتاب ہے کہکشاں حصہ دوم، جو 12ویں جماعت میں چلائی جاتی ہے، ان میں جو بھی ادیب ہیں، جو بھی ادبا ہیں، ان کی جو تواریخ ہیں، یعنی کہ تاریخ پیدائش ہوئے یا تاریخ وفات ہوئے یا کس سال میں ان کی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی، کون سے سال میں ان کی شادی ہوئی، یہ تمام تواریخ کا جو ہے وہ یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہیں ان کی تواریخ کو ایک جگہ کیا جائے اور پھر آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ یہ ایک درخواست اور گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب فیئر آن لائن چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلیے ہم چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں کون کون سے ہیں جن کی تواریخ کے اعتبار سے پہلے اور بعد میں ہیں۔ دیکھیے ناظرین، اس میں ہوا کیا ہے، اس سلائیڈز میں ہم نے ان کو شامل کیا ہے پہلے جو تاریخ پیدائش کے اعتبار سے پہلے ہیں، اور جو تاریخ پیدائش کے اعتبار سے بعد میں ہیں پھر ان کو دھیرے دھیرے کر کے ہم نے شامل کیا ہے۔ جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے 1667 عیسوی سے لے کر کے اور 1799 عیسوی تک کے یہ ہم نے شامل کیا ہے، اور یہ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے یہاں ادبا کی تفصیلات موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہمیں آج کون کون سے ادیب کے بارے میں پڑھنا ہے۔ پہلے ہیں ولی دکنی صاحب، اس کے بعد پھر مرزا محمد رفیع سودا صاحب، پھر میر امن دہلوی ہیں اور راسخ عظیم آبادی ہیں، اور پھر مرزا رجب علی بیگ سرور صاحب ہیں۔ یہ 5 ایسے ادیب ہیں جن کے بارے میں آج ہمیں پڑھنا ہے اور آج ہمیں ان کی تواریخ جاننی ہے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ولی دکنی کو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد یکے بعد دیگر ہم ادبا کو جانیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو شروع ہے ہمارے میں وہ ہے ولی دکنی۔ ولی دکنی کہکشاں حصہ دوم کے آخری میں یہ شامل ہے، جو کہ انہوں نے غزل لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ غزل لکھا ہے۔ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 20 اکتوبر 1667 عیسوی ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ اچھا، اس میں آگے چل کر کے کچھ اختلاف بھی موجود ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ ایک تو حیدرآباد کے علماء ہیں اور ایک گجرات کے محققین، دونوں کے الگ الگ تحقیق اور الگ الگ بیان ہیں۔ ایک حیدرآباد کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ولی دکنی کا نام سید ولی محمد ہے، اور گجراتی محققین کے مطابق ولی دکنی کا نام سید شاہ ولی اللہ ہے۔ یہ یاد رکھیں گے، 2 نام ولی دکنی کے ذکر کیے گئے ہیں، ایک سید ولی محمد ہے اور ایک سید شاہ ولی اللہ ہے۔ اور دونوں جو محققین ہیں، دونوں نے جو تحقیق کیا ہے ان کے مطابق جائے پیدائش بھی الگ الگ ہے۔ جائے پیدائش کا مطلب جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہونے کی جگہ کو جائے پیدائش کہا جاتا ہے۔ ایک حیدرآباد کے علماء کے مطابق جو جائے پیدائش ہے وہ اورنگ آباد کا ذکر کیا گیا ہے کہ اورنگ آباد میں ہے، اور گجرات کے محققین کے مطابق جو ولی دکنی کی جائے پیدائش ہے وہ احمد آباد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اورنگ آباد ابھی کے صورتحال میں یہ مہاراشٹر میں ہے، اور احمد آباد ابھی بھی گجرات میں ہی موجود ہے۔ گجرات کے محققین کے مطابق ولی دکنی کا نام سید شاہ ولی اللہ اور جائے پیدائش احمد آباد ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ولی دکنی کے سال وفات کی جانب، تو اس میں بھی اختلاف ملتے ہیں۔ ایک تو 1707 عیسوی مانا جاتا ہے، اور ایک ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق، یہ ڈاکٹر جمیل جالبی ہیں کون، پہلے اس کو ہم سمجھ لیں۔ یہ ڈاکٹر جمیل جالبی جو کہ NTA کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں اگر اس میں اختلاف ہو جائے، جیسے NTA کا مطلب یہ سمجھ لیجئے جس کو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی بولتے ہیں، یہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی جو NTA ہے یہ بہت سارے ایگزام کو کنڈکٹ یہ ایجنسی کراتی ہے۔ اس میں سے ایک نیٹ ایگزام ہے جو کہ پروفیسر کے لیے یا PhD کے لیے یہ ایگزام کو کرایا جاتا ہے اس ایگزام کو۔ تو یہ ایگزام جو ایجنسی کے تھرو یا ایجنسی کے معرفت جو ہوتے ہیں اس میں جو بھی اختلاف اگر ہو جائے، یعنی کہ وہ جو کوشچن میں سوالات میں جو بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، ان اختلاف کو اگر کسی کے اقوال یعنی قول کی بنیاد پر یا کسی کی تحریر کی بنیاد پر انہیں صحیح مانا جاتا ہے، وہ ہے ڈاکٹر جمیل جالبی، یعنی NTA کے نزدیک ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق مصمم اور
بالकुल परफेक्ट और सही है। तो ये डॉक्टर जमील जालवी काफ़ी अहम है हमारे अदब के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये डॉक्टर जमील जालवी हैं जिनके मुताबिक 1720 ईस्वी तक वली दक्नी जिंदा थे। वली के एक शागिर्द, ये भी एक अहम बात यह है कि वली के शागिर्द के मुताबिक एक मखतूता में यानी कि वली के शागिर्द ने खत लिखा। उस खत में उन्होंने यानी वली के शागिर्द ने वली दक्नी को 1725 ईस्वी तक के जो उन्होंने लिखा तो 1725 ईस्वी में बताया कि वली मरहूम है। यानी कि वली मरहूम का मतलब वली इंतकाल किए हैं, तभी तो वली को मरहूम लिखा गया। यानी कि वली के शागिर्द के मुताबिक अगर देखा जाए तो 1725 ईस्वी में वली दक्नी का इंतकाल हो चुका था और डॉक्टर जमील जालवी के मुताबिक अगर देखा जाए तो 1720 ईस्वी तक वो जिंदा थे। तो आखिर में ये चल करके यही कंक्लूजन आया कि अगर देखा जाए तो 1720 ईस्वी और 1725 ईस्वी के दरमियान में वली दक्नी के साले वफात को माना जा सकता है। अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरे स्लाइड पर और ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में अगर कहा जाए तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इन्होंने कसीदा की दुनिया में धूम मचा के रख दिया था और अगर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का नाम जिंदा भी है आज तक तो उसकी वजह यही कसीदा है जिसकी बुनियाद पर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा आज अदब की दुनिया में जिंदा हैं। तारीख़ पैदाइश में अगर आकर के हम देखें तो एक है जनाब हनीफ नकवी साहब। इनके मुताबिक 1712 ईस्वी बमुताबिक 1125 हिजरी यानी कि 1712 ईस्वी ईस्वी साल के मुताबिक है और इस्लामिक साल के एतबार से यानी हिजरी साल के मुताबिक अगर देखा जाए तो 1125 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई। लेकिन दूसरी एक और कौल है और दूसरा कौल ये है और दूसरी जगह ये बातें बयान की जाती है कि वह मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1713 ईस्वी में पैदा हुए। तो दो तरह की बातें आ गई, एक 1712 ईस्वी जो कि जनाब हनीफ नकवी के मुताबिक है और एक है 1713 ईस्वी जो कि दूसरी जगह पर जिक्र किया जाता है। उसके बाद मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में अगर तारीख़ वफ़ात को देखें तो तारीख़ वफ़ात 1781 ईस्वी है जो कि हमें याद रखना है। यानी कि इसमें ये समझ में आया कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब की तारीख़ पैदाइश 1712 भी है और 1713 भी है, ये दोनों हमें याद रखना है। उसके बाद तारीख़ वफ़ात 1781 ईस्वी है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम मीर अहमद देहलवी साहब के पास। मीर अहमद देहलवी साहब ने बाग़ो बहार लिखा। ये बाग़ो बहार बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है। मीर अहमद देहलवी साहब की पैदाइश दिल्ली में हुई लेकिन बाग़ो बहार कलकत्ता में लिखी गई और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में ये किताब लिखी गई। इनकी तारीख़ पैदाइश 1748 ईस्वी है। मीर अहमद देहलवी साहब 4 मई 1801 ईस्वी को इनको 40 रुपया के महीना पर फोर्ट विलियम कॉलेज में नौकरी मिल गई और ये उससे वाबस्ता हो गए। कब वाबस्ता हुए? 4 मई 1801 ईस्वी, ये हमें याद रखना है। उसके बाद 1801 ही ईस्वी में इन्होंने बाग़ो बहार को कंप्लीट कर दिया और ये मुकम्मल कर दिया। 1801 ईस्वी के लास्ट तक जाते-जाते मीर अहमद देहलवी साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत शानदार किताब बाग़ो बहार लिख दी। ये बाग़ो बहार वो किताब है जो किस्सा चहार दुर्वेश से ट्रांसलेट की गई किताब है, यानी किस्सा चहार दुर्वेश फारसी ज़बान की किताब है और उसको मीर अहमद देहलवी साहब ने उर्दू में ट्रांसलेट करके ये किताब लिखी जिसका नाम बाग़ो बहार है और ये 1801 ईस्वी में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद 1802 ईस्वी की तरफ हम चलते हैं तो 1802 ईस्वी में इस किताब पर नज़र-ए-सानी की गई मानी यानी कि इस किताब को दोबारा देखा गया। नज़र-ए-सानी का मतलब होता है दोबारा देखना और ये देखा गया कि क्या इसमें कोई किसी तरह की गलती तो नहीं है, किसी तरह की कोई ख़ता तो नहीं है, किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। इस बात को देखा गया और इसी साल किताब का तारीख़ी नाम इसी साल यानी 1801 ईस्वी में ही तारीख़ी नाम बाग़ो बहार रखा गया। बाग़ो बहार किस तरह नाम रखा गया तो ये सुनिए कि उस साल जो ये है इस्लामिक एतबार से अगर साल है, जो हिजरी एतबार से है, तो वो है 1217 हिजरी। 1217 हिजरी के एतबार से हरूफ निकाला गया तो बा, अलिफ, गैन, वाव, बा, हा, अलिफ, रा ये निकल करके आए यानी इनको अगर जोड़ा गया तो बाग व बहार यानी बागो बहार नाम आया और यही तारीख़ी नाम रखा गया। अब ये तारीख़ी नाम क्या है तो ये एक अलग तरह के टॉपिक है, एक अलग तरह की बहस है, लेकिन इसमें यूँ समझा जाए कि अलिफ से या तक के जो भी हुरूफ हैं, उन हुरूफ के एक ख़ास अदद हैं। उन ख़ास अदद या यूँ समझिए कि जैसे ए से ज़ेड तक जो भी लेटर्स होते हैं, उनके एक अदद होते हैं। जैसे ए
का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, उसी तरीके से अलिफ से या तक जो भी अरबी हरूफ हैं, उन अरबी हरूफ के भी कुछ अदद हैं जो कि ख़ास हैं, और उन हरूफ के जो अदद हैं उन्हीं के एतबार से अदद निकाले जाते हैं। तो 1217 हिजरी के जब हरूफ निकाले गए तो उस एतबार से बागो बहार नाम आया। और अंग्रेजी एतबार से अगर देखा जाए तो इस्लामी के एतबार से नहीं बल्कि ईसवी साल के एतबार से 1801 ईस्वी है। और 1802 ईस्वी में जो कि नजर सानी की गई, उसी साल में उन्हें कॉलेज की तरफ से, कौन से कॉलेज, तो यही फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से मीर अहमद देहलवी साहब को 500 रुपया का इनाम मिला इस किताब को लिखने पर। और 1804 ईस्वी में कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापाखाने से ये किताब पब्लिश हो गई, यानी छप गई। यानी कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापाखाना एक पब्लिशर का नाम है, उसी पब्लिशर के यहाँ से ये मीर अमन देहलवी की किताब बागो बहार छप करके 1804 ईस्वी में मंजर आम पर आई। और 1806 ईस्वी तक वो कॉलेज से जुड़े रहे। कौन से कॉलेज से? फोर्ट विलियम कॉलेज से। कब तक जुड़े रहे? 1806 ईस्वी तक। यानी 1801 ईस्वी में वो उस कॉलेज से ज्वाइन हुए, उस कॉलेज में सैलरीड हुए, यानी उस कॉलेज में से उनकी नौकरी लगी। और 1806 ईस्वी में वो उस कॉलेज से रिटायर हो गए और वो सबकदोश हो गए। उर्दू में सबकदोश बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे रिटायर कहा जाता है। और 1806 ईस्वी में ही वो वफात पा गए। उसके बाद हम चलते हैं आगे के स्लाइड्स पर। आगे के स्लाइड पे जो अगला अदीब है वो है राशिक अजीमाबादी। ये राशिक अजीमाबादी का नाम शेख गुलाम अली है, ये याद रखेंगे। उनका असल नाम शेख गुलाम अली। और इन्होंने भी गज़ल लिखा है। कहकशां के हिस्सा 2 में इनके गज़ल को शामिल किया गया है। इनमें ज़्यादा तफसील तारीख नहीं है, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि इनकी तारीख़ पैदाइश 1757 से 1758 ईस्वी के दरमियान है, यानी 57-58, ये याद रखेंगे, 1757 से 1758। और तारीख़ वफ़ात इनकी 1823 ईस्वी है, ये याद रखें। यानी राशिक अजीमाबादी के नाम से अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी, एक तारीख़ पैदाइश और एक तारीख़ वफ़ात याद रखनी है। उसके बाद है मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर साहब। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर साहब की कहानी अगर मैं आपको बताऊँ तो यूँ समझ लीजिए कि मीर अमन देहलवी जो कि इन्होंने बागो बहार लिखा, तो ये बहुत आम ज़बान में, बहुत लोगों की, पब्लिक की भाषा में, पब्लिक की ज़बान में इन्होंने वो किताब लिखी। लेकिन मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर साहब ने जब देखा कि मीर अमन देहलवी बागो बहार लिखे, वो भी एक आम ज़बान में लिखा, तो इन्हें नागवार गुज़री ये बात, और इन्होंने कहा कि मैं एक दास्तान की किताब लिखूंगा जो कि आवाम के लिए पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और इन्होंने किताब वो लिखा जिसका नाम है फसाना अजायब। ये फसाना अजायब काफ़ी मशहूर और मकबूल किताब है, मगर इसमें एक बात यह है कि ये इसमें जो भी ज़बान शामिल की गई है वो बहुत कठिन, मुश्किल और बहुत ही भारी ज़बान का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इनकी तारीख़ पैदाइश 1785 से 1786 ईस्वी है, ये याद रखेंगे हम। तारीख़ पैदाइश 1785 से 1786 ईस्वी के दरमियान है। इनके साथ एक मामला यह है कि ये मोहम्मद अली शाह के दौरे हुकूमत में सुरूर साहब को मुलाजमत का शरफ मिला, यानी सुरूर साहब यानी मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर साहब को भी नौकरी मिली मोहम्मद अली शाह के दौर में। ये मोहम्मद अली शाह एक बादशाह हैं जिनके ज़माने में मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर साहब को नौकरी मिलती है। लेकिन मोहम्मद अली शाह के बेटे के ज़माने में, यानी वालिद के ज़माने में नौकरी मिली, मगर उनके बेटे के ज़माने में, यानी मोहम्मद अली शाह के बेटे के ज़माने में 1847 से 1842 ईस्वी के दरमियान में उनकी मुलाजमत बरकरार नहीं रही और इनकी मुलाजमत छूट गई, यानी कि वो मुलाजमत इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद फसाना अजायब इन्होंने किताब लिखा जो कि ये क्लासिकी किताब है। नाजरीन, ये पूछा जाता है मेरे साथियों, आप गौर करेंगे कि फसाने अजायब के बारे में ये बातें अक्सर तौर पर पूछी जाती है कि फसाने अजायब किस तरह की किताब है, तो ये क्लासिकी किताब है। कौन सी किताब है? क्लासिकी किताब है। और 1825 ईस्वी में कानपुर में ये किताब लिखी गई। कब लिखी गई? 1825, 1825 में ये किताब लिखी गई। और कहाँ लिखी गई, कौन सी जगह पे लिखी गई? कानपुर में। ये भी सवाल आप ज़हन नशीं रखेंगे, नहीं हो तो आप नोट कर लीजिए कि कानपुर में फसाना अजायब को 1825 ईस्वी में ये किताब लिखी गई। और जुलाई 1859 ईस्वी में बनारस ये पहुंचे। कब पहुंचे? 1859, यानी 1859 में ये बनारस पहुंचे। और चंद दिनों के बाद, यानी चंद दिन तक वो बनारस में ही ठहरे और उसके बाद
रामनगर ये चले आए। कहाँ चले आए? रामनगर चले आए। और रामनगर में ही 1869 ईस्वी में सुरूर साहब का इंतकाल हो गया। यानी कि रामनगर में ही 1869 को सुरूर साहब इंतकाल कर गए। 1785 से 86 ईस्वी के दरमियान इनकी तारीख पैदाइश है और 1869 यानी 1869 में ये इंतकाल कर गए। नाज़रीन इकराम, तो ये थे हमारे तरफ से एक कोशिश की गई है और उम्मीद है कि आपको ये कोशिश पसंद आएंगे। तो हमारे तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अपने ये प्यारा प्यारा यूट्यूब चैनल फियर ऑनलाइन को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक ये पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपका दोस्त बदर आलम शमसी को आप इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।